کراچی بار انتخابات غیر حتمی نتائج کے مطابق صدارتی نشست پر عامر نواز کامیاب، نائب صدر کی نشست پر نصر اللہ جلبانی فاتح، جنرل سیکریٹری کی نشست اختیار شنا کا کامیاب، خزانچی کی نشست پر راحیل سمسام کامیاب، عامر نواز وڑائچ کے حامیوں کی جانب سے مٹھائیاں تقسیم کی گئی ہیں، ہوائے فائرنگ کی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں، جواد آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جواد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، کراچی بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ چکے ہیں اور ان نتائج کے مطابق عامر نواز وڑائچ اگلے 1 سال کے لیے کراچی بار ایسوسی ایشن کی مسند پر بیٹھیں گے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن سٹی کورٹ میں راج کریں گے، وہ منتخب ہو چکے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل نعیم قریشی کو شکست ہو چکی ہے، جبکہ نائب صدر کی نشست پر نصر اللہ جلبانی نے میدان مار لیا ہے اور اپنے مقابلوں کو شکست سے دوچار کر دیا ہے، جبکہ جنرل سیکریٹری کی نشست پر اختیار علی چنا فاتح قرار پائے ہیں اور خزانچی کی نشست پر راحیل سمسام علی خان نے بھی میدان مار لیا ہے، وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ امیدواروں کی جیت کے بعد ان کے ہمدردوں، ان کے حمایتی وکلاء نے فائرنگ بھی کی ہے، مٹھائیاں بھی تقسیم کیا ہے، جبکہ اپنے جیتنے والے امیدواروں کو موجود رہے گا۔ آپ ذکر کر رہے ہیں عامر نواز وڑائچ کے حامیوں کی جانب سے مٹھائیاں تقسیم گئی ہیں، ہوائے فائرنگ بھی کی گئی ہے۔ ہوائے فائرنگ کے مناظر اپنے ناظرین کو پہلے دکھا دیں۔ ہوائے فائرنگ کی گئی ہے، عامر نواز وڑائچ کی حامیوں کی جانب سے مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئی ہیں، ہوائے فائرنگ ہوئی ہے، جشن منایا گیا ہے۔ جواد آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کریں گے۔ جواد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ مناظر ہم نے دکھائے ہیں، جشن منایا جا رہا ہے، ابھی غیر حتمی نتائج سامنے آئے ہیں، مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں یہ بالکل جشن کا ان کا انداز ہے کہ فائرنگ بھی کی گئی ہے، مٹھائیاں بھی تقسیم کیے گئے ہیں، جبکہ اپنے امیدواروں کو کندھے پر اٹھا کر نعرے بازی بھی کی گئی ہے۔ وکلاء کا اس وقت ہجوم ہمیں نظر آتا ہے۔ اب تک صدارتی نشست، نائب صدر، جنرل سیکریٹری اور خزانچی کی جو ہے وہ نتائج آ چکے ہیں، جبکہ جو جوائنٹ سیکریٹری اور لائبریرین اور جو مینیجنگ کمیٹی ہے ان کے نتائج آنا باقی ہیں، جس کی وجہ سے اس وقت بھی جو ہے وہ ہمیں سٹی کورٹ میں بالکل گہما گہمی نظر آتی ہیں۔ وکلاء میرے ساتھ موجود ہیں، بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا کہ عامر نواز صاحب جو ہے کامیاب ہو چکے ہیں، کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ؟ کراچی بار جو ہے یہ ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے۔ کشمیر سے لے کے کراچی تک یہاں پر ہر خطے کا وکیل موجود ہے اور یہاں پر کوئی ایسا نہیں کہ کوئی مخصوص گروپ یا کوئی مخصوص قومیت کی اجارہ داری ہے۔ یہ کراچی بار ایک گلدستہ ہے۔ کراچی کو ہم منی پاکستان کہتے ہیں، اسی طریقے سے کراچی بار بھی ایک منی پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے۔ عامر نواز کی جیت آج اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ کشمیر سے لے کے کراچی تک کے وکلاء کی جیت ہوئی، کہ عام وکیل کی جیت ہوئی ہے، اور ہم آئندہ توقع بھی رکھتے ہیں عامر نواز سے کہ وہ اس جیت کی مد میں جو ان پر ذمہ داریاں عائد ہوئی ہیں وہ ان کو پورا کریں گے۔ دیکھا، یہ عامر نواز سے امید بھی کرتے ہیں کہ جب ان پر وکلاء نے اپنا اعتماد ظاہر کیا ہے تو وہ ان کی امیدوں پر کھرا اتریں گے۔ ایک اور وکیل موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کس طریقے سے دیکھتے ہیں آج پورا انتخابی عمل ہوا اور ابھی مزید نتائج آنا باقی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو شعیب صاحب نے بتایا کہ کراچی بار جو ہے ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے، تو کانگریٹس ٹو عامر وڑائچ، وہ صدر منتخب ہوئے ہیں۔ دوستوں کا الیکشن تھا، جو جیتے ہیں ان کو ڈھیر ساری مبارکباد، اور جو رہ گئے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کے لیے تیاری کریں، وہ بھی ہمارے دوست ہیں، ان کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، اور جو الیکٹڈ باڈی ہے ان کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں عامر وڑائچ صاحب سے کہ جی وہ آنے والے وقت میں ویلفیئر کے حوالے سے انشاءاللہ ایک اچھا قدم اٹھائیں گے اور اچھا کردار ادا کریں گے۔ تھینک یو۔ تو دیکھا، آپ نے ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ انہوں نے مبارکباد بھی دی ہے جیتنے والے امیدواروں کو، جبکہ یہ امید بھی ظاہر کیے ہیں کہ اب جب وہ کرسی پر بیٹھنے جا رہے ہیں تو جو انہوں نے وعدے دعوے کیے تھے وہ انہیں پورا کریں گے اور وکلاء برادری کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے۔ انہوں نے اپنے منشور میں شامل کیا تھا کہ وکلاء کو جو ہے وہ تعلیم سے آراستہ کریں گے، ان کے جو ہے وہ سوسائٹی کے لیے بھی وہ عمل پیرا رہیں گے، جبکہ انہیں طبی سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔ اور اب وکلاء نے عامر نواز کو منتخب کر لیا ہے۔ جنرل سیکریٹری کی نشست جو سب سے اہم ہوتی ہے دوسرے نمبر پر، اس پر اختیار علی چنا فاتح قرار پائے ہیں، نائب صدر نصر اللہ جلبانی، جبکہ خزانچی کی نشست پر راحیل سمسام علی خان منتخب ہو چکے ہیں۔ اور اس وقت
सिटी कोर्ट में एक जश्न का समा है। गाने भी बज रहे हैं, फायरिंग भी हो रही है, मिठाइयाँ भी तकसीम की जा रही हैं, खुशियाँ भी मनाई जा रही हैं, गले लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे को जो है वो मुबारकबाद भी दी जा रही है। गोया एक ईद का सा समा यहाँ पर छाया हुआ है। जी जवाद आसिफ मनाजर दिखा रहे थे, जश्न का समा है। इस वक्त गैर हतमी नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। वकला यहाँ पर मौजूद हैं बड़ी तादाद में और अपने नाज़रीन को ये मनाजर हम दिखा रहे हैं। काफ़ी जश्न भी बनाया गया है। आईजी सिंध राजा रिफत की इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह से मुलाकात हुई है। मुलाकात में आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। इस पर मज़ीद बात करेंगे। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद। बिल्कुल जी, बुनियादी मकसद इस मुलाकात का यही था। दिल्ली की जानिब से जो ऐलान किया गया कि 8 फरवरी को जो है वो इलेक्शन किए जाएंगे, उसके बाद ये मुलाकात हुई है। और अहम मुलाकात ये इसलिए भी है कि सिंध ने तमाम काबी अमल उनका उस हवाले इसमें जबकि मुलाकात के दौरान जो इलेक्शन कमीशन सिंध ने आई सिंध को तमाम तर कौमी असम्बली और सूबे असम्बली की इंतजात है सिंध में, और इसके साथ पोलिंग स्टेशन की तादाद, पोलिंग स्टेशन का महल वकूफ और पोलिंग स्टाफ और दीगर अमला जो है उनकी सिक्योरिटी के हवाले से तमाम तर ब्रीफिंग दी है IGC को। जबकि IGC ने जो है इस बात कराई कि पुलिस से इस बात की बेहतर है कि इंतखाबात के हवाले से बुलप्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। उसके हवाले से तमाम तर जो मुतालिका डिपार्टमेंट्स हैं उनसे मुशावरत की जा रही है और एक प्रॉपर प्लान जो है वो तरतीब दिया जाएगा, न सिर्फ इलेक्शन के लिए बल्कि इलेक्शन के से पहले जो चलने वाली कैंपेन है सियासी जमात की जानिब से उस हवाले से भी सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे। और इसके साथ साथ आगाज से लेकर इंतखाबात के दिन उसमें उससे कब जो है वो सिक्योरिटी के अमूर जो स्टेशन और DC ऑफिस और जहाँ से तफसील होगी सामान की पोलिंग वो तमाम तर और बैरेज बक्स और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब वापस अपने इंतखाबी अमल ख़त्म होने के बाद पहुँचाए जाएंगे, तमाम तर को जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पुलिस पुरज़म है। और इस तरह की मेजर्स की जाएगी कि किसी किस्म की सूरत हाल की निमट के लिए भी और साफ और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए पुलिस जो पूरा ताउन करेगी। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह से कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत की मुलाकात हुई है, जिसमें इंतखाबात के पुरअमन, शफाफ और गैर मुनसिफाना इनेकाद के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। बात करेंगे नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। जी शुएब। जी बिल्कुल, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह से कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत की मुलाकात हुई है। कमिश्नर कराची ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध को चार्ज संभालने पर जो है मुबारकबाद दी है। दोनों फ्रैकैन ने जो है आम इंतखाबात के पुरअमन, साफ और शफाफ और गैर मुनसिफाना इनेकाद पर जो है तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। जॉइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध अली असगर सियाल भी जो है इस मुलाकात में मौजूद थे। इस मौके पर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध का कहना था कि इंतखाबात के साफ और शफाफ, आज़ादाना और मुनसिफाना इनेकाद के लिए तमाम तर मसाइल को जो है बरोएकार लाया जाएगा। इंतखाबात का शेड्यूल जो है वो जारी हो चुका है। पूरा मुल्क इंतखाबात की तैयारी में मसरूफ है। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए तैयार है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आम इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान होने के बाद MQM ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रुजू करने का फैसला कर लिया। ज़राए का कहना है कि MQM जॉइंट इलेक्शन कमिश्नर सिंध अली असगर सयाल की तब्दीली का मुतालबा करेगी। MQM का वफ़द जल्द चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक MQM की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने इलेक्शन कमीशन मेंबर निसार दुरानी की सूबे के इंतखाबात में अमल दखल न होने से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात भी रखे जाएंगे। MQM के मुतालबे पर गुज़िश्ता दिनों इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान का तबादला किया जा चुका है। कराची में पार्किंग माफिया शहरियों से गैर कानूनी तरीके से पैसे बटोरने लगी। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद मार्केटों के बाहर पार्किंग माफिया सरगर्म है। अयाज राना की रिपोर्ट। शहर कायद में पार्किंग माफिया बेलगाम, कोई इलाका छोड़ा न बाजार का अहम तरीन मुकाम तारिक रोड भी
पार्किंग माफिया के निशाने पर आ गया। जगह जगह पार्किंग से शाहराहों पर ट्रैफिक जैम होना मामूल बन गया। तारिक रोड ट्रेडर अलायंस के सदर इलियास मेमन ने शिकवा किया कि गैर कानूनी पार्किंग कई बार खत्म कराई, मगर पार्किंग माफिया दोबारा काम शुरू कर देती है। पीछे नाजायज पार्किंग लगी, फुटपाथ पे लगी हुई। कल मैंने खुद ने पार्किंग एसओ से साफ करवाई है, सो आज फिर लगी हुई है पार्किंग। ये सब मिलकर पैसे खा रहे हैं। कोई भी ऐसे आदमी नहीं है, इनको ये खुद कहते हैं, ठेकेदार खुद कहते हैं कि हम 3-3 हज़ार रुपये बाइक के पैसे, रोज़ के पैसे हम देते हैं यहाँ पे। जो खुद ठेकेदार खुद कहता है, हमने इनको बुलाया। ये मतलब है डबल 3-3 पार्किंग गलत खड़ी करी हो, गली गली कूचो कूचो में नाजायज पार्किंग करी हो, नाजायज पथारे लगे हुए। तारिक रोड ट्रेडर अलायंस के जनरल सेक्रेटरी असलम उन्नर बोले, माफिया मोटरसाइकिल और कार पार्किंग के जायद पैसे वसूल कर रही है। पार्किंग की जो पर्ची है उस पे 10 रुपये लिखे हुए हैं, 30 से 50 रुपये ले रहे हैं। गाड़ी वाले से ये ज़बरदस्ती 100 रुपये ले रहे हैं। डबल पार्किंग लगी हुई है, कोई इसकी सुनवाई नहीं है। इनसे हम कहते हैं, एसओ साहब से, ट्रैफिक एहलकारों से कहते हैं, अमजद साहब आए, डीएसपी आए, एसओ साहब आके कहते हैं जी हमारे पास नफरी नहीं है। नफरी नहीं है तो भाई आप ये चलते फिरते, एसओ साहब ने ठेले वालों की एफआईआर कटवाई, तो इनके खिलाफ क्यों नहीं आप पकड़ के एफआईआर कटवाते हैं? इस पर हम इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? तारिक रोड ट्रेडर्स के ओहदेदारों ने डीआईजी ट्रैफिक से अपील की है कि मामले पर फौरी एक्शन लिया जाए। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ अयाज राना, सिटी 21। 18वीं आलमी कुतुब मेले में बच्चों के लिए मालूमाती किताबों के स्टॉल्स भी सज गए। यंग मुस्लिम पब्लिकेशन के स्टॉल पर इस्लामी कहानियों की किताबों के अलावा शायर मशरक अल्लामा इकबाल की शायरी की कुतुब भी मौजूद हैं। मज़ीद बताएंगी नम्रा रियासत। बिल्कुल जी, आलमी कुतुब मेला अपने आबोताब के साथ जारी और सारी है, और इसी कुतुब मेले में जहाँ मुख्तलिफ मज़ामीन की किताबें बड़ों के लिए मौजूद है, वहीं बच्चों के लिए भी एक बड़ी तादाद में मुख्तलिफ रंगों से भरी और कहानियों वाली ऐसी किताबें मौजूद हैं जो बच्चों को मालूमात फराहम करने का ज़रिया है। बहुत सारी किताबें, बाकी हम उनमें भी बस तफसीलात जानते हैं। बिल्कुल, अल्लामा इकबाल के ऊपर भी हमने बहुत काम किया है। अल्लामा इकबाल की ये किताब है बच्चों का इकबाल। इसके अंदर अल्लामा इकबाल की पूरी बायोग्राफ़ी लिखी गई है आखिर में, और शुरू में हमने अल्लामा इकबाल का कॉन्सेप्ट खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ को वाज़ेह किया है। हमने इसको रीज़नेबल प्राइस पे यहाँ पे मौजूद हैं। हम यहाँ पे हमारी बुक एक 200 रुपये की भी मौजूद है, 200-250 से हमारे पास शुरू हो रही है किताबें। बच्चों को बहुत मज़ा आता है, ख़ास तौर पे आजकल जो हम देख रहे हैं कि ये बुक खोलते ही बच्चे जो है ना वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं कि इसका ये जो ब्लैक कलर है उनको बहुत ज़्यादा दूर से अपील करता है। ये बुक है जो कलर्स हैं वो बच्चों को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं कि वो फिर चाहते हैं कि उनके वालिदैन या उनके टीचर्स उनके लिए ये किताब ख़रीदें। जी, ये यकीनी तौर पर न सिर्फ बच्चे बल्कि वालिदैन भी जो हैं वो किताबें ख़रीदने में जो है बच्चों के साथ दिलचस्पी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। और बच्चों के लिए खुसूसी बनाई गई किताब खुसूसी एतबार इसलिए क्योंकि उसमें उसको रंगीन बनाया गया और उसमें इस तरीके से दुआएं और उनके लिए जो है वो पैगामात मौजूद हैं जिससे वो दिलचस्पी लेकर उस किताब को पढ़ेंगे, और न सिर्फ उसको पढ़ेंगे बल्कि समझेंगे, समझ कर उस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। और इसी तरह वालिदैन और तमाम बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और किताबों की ख़रीद का जो है वो सिलसिला भी जारी है। और तीसरा रोज़ है और शायकीन कुतुब जो है बड़ी तादाद में यहाँ का रुख भी कर रहे हैं और वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर जो है वो रुख करते दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और जो है वो बच्चे जो हैं वो ख़ास तौर पर जो उनकी जो दिलचस्पी है वो दीदनी है कि वो अपनी मनपसंद किताबें लेने में जो है वो दिलचस्पी का मुज़ाहरा कर रहे हैं और अपने वालिदैन के साथ बाज़िद होकर मुख्तलिफ़ किताबें भी ख़रीद रहे हैं।